भाई मॉर्निंग क्या हाल? सब बढ़िया भाई। सर एक मिनट, आप कैसे हो? अरे माँ, नाराज हो जाती तेरे शैडो में आ जाओ ना यहाँ पे। शैडो में कैसा तू? बिग बॉस देख रहे हो आप? यस बिग बॉस का सबसे बड़ा फैन खड़ा है। बस 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 आगे बस मत बस जाओ। बस 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 अभी कैसे नहीं टीना आज गई। थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे। गई? मतलब अभी तो गुरमीत सर डबे में यहाँ पे लेफ्ट ऑन योर सुमी सा, मतलब निकल गए गुरु सर सेंटर। आप ही को देख रहा हूँ मैं। बस यहीं पे 2 कैमरा है। भाई यहाँ पर भी देखिए। तेरा कैमरा नीचे कहाँ देखूँ मैं? पहले मोबाइल से लेते हैं। यहाँ पे जाओ मत। हाँ या भाई एक मिनट मैम बहुत फिर रुकिए मैम। अरे क्या बात है? अरे देखिए हाँ, क्या कमेंट है क्या बोला? क्या अब वो तो फैक्ट है। चौधरी कौन धक्का मार रहा है? अरे थैंक यू सीरियस सोलो वही कर लेते हैं। आ जाओ यहाँ पे लेफ्ट ऑन योर लेफ्ट। श्रेयस बहुत हिलता है यार। श्रेयस बहुत हिलता है यार। ये भूल गया इसकी याददाश्त कमजोर है। वही अभिषेक तो मिलता भी नहीं है। नाम अभिषेक को ये है सबको दे दी। सर आइए ना सर, गुरु सर आइए। गुरु सर लेफ्ट गुरु सर यहाँ पे लेफ्ट। यस सर। सूट परफॉर्म कर रहे थे। आई नो। मैंने पहले एक्चुअली बेगिना से पूछा तू परफॉर्म कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मैंने बोला मैं कर बोला लाइक हाँ मुझे करना है क्योंकि फर्स्ट मतलब इससे अच्छा सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? सिद्धार्थ रेडी है तो लग रहा है सर। आजा पीछे आजा सब पीछे आजा आसिम। आसिम को मुंह पे जाने का। To see you guys. ऊपर जा रहे हैं पहले। Celebrations simultaneously organizing in 8 cities across India with Indian movie stars performances. So here we have none other but the chairman managing director of Country Club, Mr. Y. Rajiv Reddy with us. सारे प्रेस को ना रिक्वेस्ट है थोड़ी तालियां भी आप बजा दीजिए साथ में. Come on, wonderful. And along with them, जिसका इंतजार आप सभी को है, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर. थोड़ी तालियां जरूर बजाइएगा. वी हैव विद अस डबीना एंड गुरमीत. वेलकम. Yes, and I would request to please present a bouquet. प्रेस को थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज थोड़ा शांत होके आराम से. एवरीबडी विल गेट द बाइट. सभी को फोटोग्राफ्स भी मिलेगी प्लीज. थैंक यू. एंड नाउ टू मूव अहेड, I would request you all to please, if you're going for a second, take a seat here, please. We're just going to have a lovely AV over here, a lovely presentation. So please, welcome. Welcome, ma'am. Okay, to begin with, one of the biggest New Year bash, Country Club. Let's have a glimpse. Please. Thank you, media from Bombay. It is really fantastic for you to be here early morning. That too on such a beautiful day, lovely weather in Bombay. And it's always a pleasure to be here with you.
And it's something, especially from an entrepreneur who's coming back from Hyderabad, who started his journey on a motorbike, long back, dreaming about making it into different parts of the country, maybe different parts of the world. It is something that I can tell you one thing, that without media's blessings and without the support, we could not have been where we are today. And definitely, the story has been quite inspiring. We had our ups, we had our lows. In fact, COVID season, things were very tough. But then in the hospitality sector, I think we are the ones who have made a quick comeback. Thanks to Brand Country Club, thanks for your support, thanks for everybody who's here today. And regarding New Year, my dear friends, it's always amazing. In fact, the very first New Year party what we had in Bombay was, we had booked the entire hotel in Renaissance, where we had got Remo Fernandez and Yukta Mukhi for the first big event in Bombay. There were more than about 5,000 people that particular day. And this club was in the formative stage, it was just coming up. But then we were in a mood to extend the market, to be able to make our presence in Bombay. I remember one day I had met Mr. Rajesh Khanna in a flight on the way to Hyderabad from Bombay. He was sitting next to me and I had noticed him. And I was surprised when he said, "Hello, Mr. Tamdap Reddy." So I said, when he was wearing a kurta and I could not really place him immediately. And he said, "You are making a very good presentation in Bombay, but let me tell you one thing, Mr. Reddy. My name is Jiten. Bombay will give you only one chance. Whatever you want to do in Bombay, do it big. People in Bombay will not expect anything less." That was a very strong message that always played into my mind. And then, of course, my reaction also was very similar. And what we did in Bombay, I don't think so we have done anywhere in the world. The presentations, the top artists who performed, people like, Shah Rukh Khan had performed for us, Salman Khan had performed for us, Vivek Oberoi, and of course, Govinda. Almost all the stars were associated, like Sushmita Sen and Hema Malini ji. So all these people really have contributed in a huge manner for building up the brand. Brand Country Club is very famous because of the events, and this New Year event again is going to bring a lot of life into the citizens of Bombay, into the Brand Country Club, into the members. Because like I was telling you, the last 2.5, 3 years, people were a little isolated. People were not really coming up. There were a lot of safety precautions. The fear was there, but now we have also passed that stage, and I'm sure, I think this year, Guru and Divina are not new to Country Club. They have been with us, associated with us for the last 8 years. So, they have given some fantastic performances, and that's the reason I think unanimously we chose them, that we requested them to perform for the Country Club, because they know more about the Country Club than a lot of other stars do. And as a couple, I think they make a fantastic couple, and I'm sure, I think they will entertain the city of Bombay and the people members of the Country Club. And also, on this special day, we want to announce another very special thing for selected members also. They will be having wine and dine with the stars immediately around the time when the performance, with the chairman's box. So I'm sure, I think it's going to be a gala evening for everybody. So with this, I'd like to invite Guru to take on the stage. Hi everyone. इतनी शांति क्यों है? देखो कितना, इनके जोरदार तालियां बजाओ पहले तो। वेल 2 साल के बाद मैं और दीपिना परफॉर्म करने जा रहे हैं यहाँ पे, और आपको तो पता है कोविड की वजह से हम बिल्कुल भी ऐसा कुछ कर नहीं पाए थे। और अभी हाल ही में ये साल कुछ बहुत ही स्पेशल रहा है मेरे और दीपिना की लाइफ में। 1 साल पहले तक हम दोनों वेले थे, अभी 2 बेबीज आ चुकी हैं, क्यूट सी। तो बहुत ही अलग है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।
और जब परफॉर्मेंस की बात आती है, जब 31st की बात आती है, तो हमने हमेशा कंट्री क्लब के साथ हमने परफॉर्म किया, फैंस के साथ इंटरेक्शन करने का हमें मौका मिला है। ये साल काफ़ी स्पेशल रहेगा क्योंकि मैं और देवीना काफ़ी टाइम के बाद परफॉर्म कर रहे हैं, और इस बार सबसे स्पेशल इसलिए भी रहेगा कि जो हमारी दो बेबीज़ हैं वो हमें परफॉर्म करते हुए देखेगी, तो हम लोग उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड है। बट मैं आपको बता दूँ, देवीना सिर्फ 28 दिन हुए हैं अभी बेबी को डिलीवर करते हुए, फिर भी इन्होंने हाँ बोला, उन्होंने बोला कि मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। आई थिंक इनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। अब आ भी जाओ आप। सो जैसे उन्होंने कहा इट्स जस्ट 28 डेज, लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप लोग। आप हमें मोटिवेट करते हैं, इतने जो कैमरा है और जो इतने सवाल आते हैं आप लोगों से, जो हमें एक्चुअली फैन से कनेक्ट करता है, वो चीज़ को मैं ना नहीं कर पाई। एंड आई थॉट दिस वुड बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल एट वंस विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग थोड़ा बहुत मुझे रीच आउट कर रहे थे, बात करना चाह रहे थे। फिर मैंने सोचा एक स्पेशल मौका होना चाहिए, और हर एक इंसान के लिए वो मौका है कि अगला साल बहुत अच्छा रहे। तो इसीलिए हमने सोचा कि 31st को परफॉर्म करते हैं, और जो भी ऑडियंस रहेंगे लाइव, प्लस जो लोग भी देखेंगे थ्रू योर आइज, सबके लिए अगला साल बहुत बहुत अच्छा रहे, और इसी के साथ मेरा भी वापसी हो जाए। और एक बार स्टेप कदम रख दिया उसके बाद तो देयर इज नो लुकिंग बैक। मुझे तो बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा है, कुछ ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। सिर्फ गुरमीत बार बार बोल रहे जोश में होश मत खोना। एक्चुअली वहाँ पे बैठ के देवीना को ही बोल रहा था कि हम सब एक्टर है ना, जब गाना बजता है तो थोड़ा जोश के साथ नाचने लगते हैं। तो मैंने कहा कि देवीना आराम से नाचना, और फिर देवीना ने बोला मेरा हिल थोड़ा हिल भी रहा है, बोले कि तोड़ना मत हिल। तो शुरू होने से पहले स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस से शुरू करते हैं, तो देखते हैं थोड़ा सा मतलब ब्रश अप करते हैं, फिर 31st को नाचेंगे। व्हाट डू यू से? That's what मैं भी यही पूछने वाली थी कि since it's going to be a rocking and a special one, थोड़ा झलक दिखने अगर मिल जाए तो if you can देखिए बोलते बोलते टेबल भी लेके चले गए, हाथ में माइक ही लेके ना नाचना स्टार्ट कर। मनोज पीछे, मनोज अभी इम्प्रॉम्प्टू कुछ हम लोग Yes, please, if you can just show us a little glimpse. मनोज ये सिर्फ मनोज के लिए स्पेशली। मनोज एकदम बोलती कैमरा एकदम ऑन करके रख के खड़ा हो गया एकदम। स्नेह स्नेह सर आ रहा भाई, थोड़ा पीछे। सब लोग पीछे आ जाओ, सब लोग पीछे आओ। सब पीछे रहो पीछे। अंकल सोनू भाई साहब मोबाइल पीछे रहो, वो आगे ले, वो सोनू पीछे ना, पीछे आ जाओ, उसको उनको पीछे कर दो। हां यहाँ पे मिली लाइव जाते हुए मेरे इंस्टाग्राम से, सबको एक बार हाई बोल देते हो सारे लोग इंस्टाग्राम पे, हाय एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। कुछ भी बजाओ गाना, कुछ कर दे कुछ।
आ नहीं तो बात नहीं करेंगे। इधर आ सारी दुनिया देखेगी तुझे नाचते हुए। गाना लगाओ। फिर से लगा दो गाना। बरसात की धुन मत लगाना, इसके साथ रोमांस आएगा। देख, एक भी फोटो नहीं क्लिक करूंगा तेरे साथ। आ पहले मनोज ने स्पेशली बोला कि तुझे नाचते हुए। मनोज को चाहिए कॉन्फिडेंस के लिए बोल रहे हाँ मनोज, देख तेरे सपोर्ट के लिए चाहिए। आना मनोज को भेजो। मनोज, अभिषेक भेज। मनोज जल्दी आ। मनोज और श्रेयस मनोज जी आ जाओ। जोरदार तालियां मेरे लिए। Thank you so much. And now, sir, I would request you to please be with us on the stage. So, अब हम अनवील करेंगे हमारी जो न्यू ईयर बैच की टिकट है, द कार्ड है, उसके लिए I would request to please get the card. So we're going to unveil New Year Bash 2023's card. थैंक यू सो मच, आपने तारीफ की। Thank you so much. And now we'll move ahead for the Q&A session. मैं chairs रखवा दीजिए प्लीज यहाँ पे। माइक दे दीजिए। बैठ जाऊंगा ना काट दे भाई पीछे आओ यार मनोज। सर के लिए माइक दे दो। मनोज को बोला बोल ना पीछे आएगा यार, पूरा सर आ रहा है यार। कैमरे में आ रहे मनोज भाई थोड़ा पीछे लो ना शेयर। सुनो मनोज थोड़ा चेयर पीछे लेना मनोज। आपको इशारा आएगा। हेलो भाई साहब गुरमीत हाय सर, हाउ आर यू? आपने कई बार सिनेमा के टिकटों पे बैनर्स की फिल्मों की तस्वीरें देखी होगी। आज यहाँ टिकट पे आप दोनों को अपनी तस्वीर देखकर कैसा महसूस हो रहा है? सर बचपन में एक सपना था कि मिरर में सिर्फ अपने आप को देखता था। ऐसा फील होता था बचपन में कि कहीं पोस्टर में हमारा नाम हो। और आज जहाँ कहाँ भी फोटो मेरी छोटी हो बड़ी हो तो बड़े दिल से बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि तब मुझे यकीन होता है कि अगर आपके सपने में दम है, अगर आपकी सोच में दम है तो आप जरूर कहीं भी पहुंच सकते हैं। आई फील सो हैप्पी सर। गुरमीत नवीना दोनों से सवाल है। हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए देखा हमेशा आपको, जब भी डांस के लिए परफॉर्मेंस करना होता है चाहे वो रियलिटी शोज हो
अभी तो यहाँ न्यू ईयर में सबके सामने परफॉर्म करना है और ज्यादातर समय आप लोगों का अभी जो है वो एक नई पारी की शुरुआत करने में गया है। समय बहुत कम बचा है, तो लग रहा है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि लोग भी हैं और उनकी उम्मीदों पे खरा भी उतरना है। जितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को उतना ज़्यादा एक प्रोत्साहन मिलता है प्रूव करने का। तो अगर चैलेंजिंग नहीं हो तो लगता है ये बहुत बार किया है, तो हम लोग करते भी हैं। और जब लगता है कि नहीं यार करना पड़ेगा, लोगों का एक्सपेक्टेशन है, तो आप मेहनत करते हो और पिछले से बेटर परफॉर्मेंस देते हो। तो आई थिंक इट वुड बी नाइस। और चैलेंजिंग से ज़्यादा मुझे लगता है हम लोग दोनों बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि 2 साल कोविड के लिए गया और ये वाला पूरा साल तो मतलब ऐसे ही घर में बंद रह के गया। सो आई एम लाइक सुपर डुपर एक्साइटेड और बहुत अच्छे अच्छे गाने चुनेंगे और बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस होने वाला है। डिफरेंस एक छोटा सा है जो मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट टाइम मतलब अभी 2 दिन पहले हम लोग घर पे कुछ डांस करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारी जो बेबी है वो बैठ के हम लोग को परफॉर्मेंस कर डांस करते हुए देख रही थी। तो दैट वुड बी द ओनली डिफरेंस एंड दैट इज द थिंग आई थिंक गिव्स यू मोर एनर्जी, क्योंकि कोई आपको जन्म से ही देखते हुए सीख रहे हैं। जब पता चला कि पेरेंटहुड की खबर आपको दी गई तो किस तरह का स्टेप्स किए थे तब आपने? सर दिल गार्डन गार्डन हो गया था सर ये अलग फीलिंग है सर। मैं हमेशा सभी को बोलता हूँ कि जब तक बेबीज नहीं थी तब एक अलग गुरमीत था, अभी बेबीज आने के बाद अलग गुरमीत है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमेशा से थी। लेकिन जब बेबीज को देखता हूँ तो मुझे और मेरा और देवीना का वो 15 साल पुराना जब लाइफ में कुछ भी नहीं था, तब बस में घूमना होता था और मैं सिर्फ ये सोचता था कि इस लड़की से किसी तरह शादी हो जाए, कुछ काम करूंगा तो तब जाके इनके मॉम डैड से हाथ मांग पाऊंगा। तो पूरे फ्लैशेस आते हैं और आज शादी होगी, घर बना लिया, सब कुछ लाइफ में भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है और अब बेबीज भी आ गई हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी जिंदगी में मुझे लगता नहीं मुझे कभी मिली। और अब 2 बेबीज हैं, आप यकीन माने जब रात को एक चिल्लाती है तो गोद में उठाता हूँ, वो चुप हो जाती है, फिर दूसरी चिल्लाने लगती है, फिर देवीना मुझे एक लुक देती है, फिर दोबारा उसको भी उठा लेता हूँ। तो मेरी जिंदगी यही चली जा रही है अभी तक। दोस्त बैठ जाना दोस्त। Next. Hi Deepina. Well, congratulations second baby के लिए. And I know although you are excited क्योंकि 2 साल बाद ये चीज़ वापस से होने जा रही है कि आप लोग स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं न्यू ईयर के मौके पर, but still how difficult was it for you to take this decision कि मतलब you want to perform because as we all know कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं आपने डिलीवर किया है बेबी को, तो how difficult was it to take this decision? I think this decision wasn't very difficult because हमेशा हमने काम किया है और अभी बहुत लोगों से ऐसे मिले हैं जो लोग बेबीज़ करना नहीं चाहते। मैं बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि करियर ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ और उन लोगों का वो जो फियर है टू हैव अ फैमिली, उस फियर से भी मैं मुक्त करना चाहती हूँ, ये बोल के कि इट इज़ ईजी, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स ऑल इन योर माइंड। और हाँ मतलब एज अ वुमेन हम मल्टीटास्किंग हमेशा करते थे और आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे। तो मल्टीटास्किंग इज आवर सेकेंड नेम। आई थिंक ऑल द वुमेन आउट हियर विल एग्री, क्योंकि घर का काम, बाहर का काम, किचन का काम, हस्बैंड का काम, सब कुछ हम लोग संभाल सकते हैं। सो इट इज संभालना इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स हियर एंड वी ऑल कैन डू इट। सो इफ यू आर स्टिल थिंकिंग, प्लानिंग, यू कैन टेक द प्लान्स। एंड गुरमीत, आपसे भी जानना चाहूँगी हाउ रिस्पॉन्सिबल अब आप फील कर रहे हैं, 2 बेटियों के बाप हो गए? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल जैसे थे वैसे ही है अभी भी। खुद के खेलना कूदना, जिम, सारा खुद को लेके एकदम मतलब उसको लगता ही नहीं, मुझे याद दिलाना पड़ता है बेबीज को दिखा के, गुरु ये तुम्हारी बेटी है। ओ हाँ, दो ऐसे ज्यादा नटखट हो गए। ज्यादा क्या ये अच्छा नाम आपने दिया मुझे, ज्यादा नटखट हो गए। नहीं बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है और जो देवीना बोल रही है वो भी सही है, दोनों है। लेकिन ये मुझे लगता है कि हर एक जो नया बाप बनता है उसको एक समझ में थोड़ा कभी होता है कि आपको, ये फिल्म नहीं है, फिल्मों में हम देखते हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिल्मों में जिस तरीके से दिखाया जाता है कि एक
बेबी आया तो गाने चलने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट वो ठीक है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मतलब उसके पीछे आपको टाइम देना पड़ता है, बहुत सारा चीज़। और आई थिंक मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक ऑल बिकॉज ऑफ देवीना जिस तरीके से हैंडल कर रही है बेबीज को, वो तो मुझे लगता है कि मैं आराम से अपनी मीटिंग में जाता हूँ, शूटिंग करता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। एंड देवीना का बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे बोला कि यार काम पहले है, जब देवीना का काम आता है थोड़ा मेरा सपोर्ट हो जाता है, बट ज़्यादा सपोर्ट देवीना का हमेशा रहता है। वो जिस तरीके से हैंडल कर रही है सारी सिचुएशन को, हेड्स ऑफ। Thank you. मेरा सवाल देवीना के लिए है। देवीना, जिस तरीके से आपने बताया कि आप सभी कामों को संभालती है, साथ ही साथ हम आपके ब्लॉग्स भी देखते हैं, हर वुमेन्स को इंस्पायर करती है आप। तो ये भी जानना चाहेंगे, अब जब मॉम डैड को गुरमीत और देवीना के नाम से जानते थे, अब जब आपकी बेबीज के नाम से जब जानेंगे कि हाँ ये देवीना की मॉम है, कैसा लगता है जब, बिकॉज ब्लॉग में तो हम देखते ही हैं, सो कैसा लगेगा जब आपको सभी जानेंगे? एज लियानाज मॉम Yeah. ऑलरेडी ये होने लग गया है कि हम लोग हॉस्पिटल में गए थे और उसको नेबुलाइजर देने के लिए, और लोग आए और बोले लियाना है, अरे वो लियाना के मम्मी पापा। हमें ऑलरेडी लगा माय गॉड, इट इज समथिंग लाइक थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, बट मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों को मिलना चाहते हैं, जेन्युइनली लियाना से मिलना चाहते हैं तो वो लोग सब आ सकते हैं कांदिवली में, मतलब हम लोग खुला मिलेंगे सबसे। गुरमीत, व्हाट अबाउट यू? जो दीपिना ने कहा वही मुझे बोला गया दीपिना ने, इतना ही बोलना है। Reddy sir, something you know, they have been associated with her from a very long time. In fact, you know, Guru and Deveena. What have you to say this time? How big it is going to be? No, it's going to be, I think, the biggest so far in Bombay. And no, Deveena and Guru, I think they've been in the country club, so it's but natural that they react to the situation. In fact, I was actually worried because Deveena had just conceived a baby, so I was not very sure whether they would be in a mood to perform. But I was pleasantly surprised and also happy that they have chosen to perform, and that country club was able to motivate them to come back on the stage immediately. So I think let's give a big hand to Deveena for her spirit. I think this will motivate a lot of women. I think in one way, actually, speaking, looking back in life, you know, country club is really the biggest motivating factor in my life also. The first thing that I do when I get up was to jump out of the bed only, because I know that something is waiting for me, people are waiting, and you know, my first, the first step is the biggest motivation, and then to hit the gym and then to go to the swimming pool, reaching the office before 9. A lot of people think I'm very conservative, but then that's the way I am, and I think people basically from Hyderabad, people from the south, are very early risers, and they are quite hardworking, and maybe I have inherited these qualities right from my forefathers of this thing, because they're basically people are very, very early risers. And of course, a lot of people say or think that I work very hard, but for me, every single day in the country club is like a dream come true. So I think it's just going forward. More so after what happened in the last 3 years during the COVID times. I mean, to be alive is a blessing actually. And to handle a company with about 5,000 people, not one person we have sacked or removed. All the 5,000 people we were able to give them employment, continue with them despite all odds. So I think if you ask me what happened in the last 2-3 years, this is what happened. We have survived, not only survived, we are now growing. And of course, our franchisee route, where we have taken more than 100 franchises recently, shows the strength of the brand, strength of the brand Country Club, not only here but also abroad. So I think if you look at me behind every event or something that is negative, I think there is something positive that is also happening. So I am sure, I think we have come out in a very big way, and now the world is our stage. Oh, that's what I feel. गुरमीत, आपसे मैं चाहूँगा प्रोफेशनल कमिटमेंट कुछ अगर आप कर रहे हैं, पर्सनल कमिटमेंट तो आपको ऑलरेडी काफ़ी बिजी है, इससे हमें पता चला, प्रोफेशनली क्या कुछ कर रहे हैं इसके अलावा? वेल ये साल तो आप सभी जानते हैं, पिछले 2 साल से काफ़ी गाने किए हैं और काफ़ी वो चले हैं।
मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर हम एक एक्टर को उनके लाइफ में बहुत अच्छे हिट गाने होने बहुत ज़रूरी हैं, उस पर थोड़ा फोकस किया मैंने और काफ़ी गाने चल पड़े हैं। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार आपने बॉडी शॉडी काफ़ी बना ली, क्या चल रहा है? तो आई थिंक जो आप देख रहे हो थोड़ा अलग हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। The left Sir, center. Sir, right side यहाँ पे. Sir, center. Sir. Very good. जा मेरे भाई. अब आइए. Both of you start your right. left. Both of you left. Urutar left. Urutar left. Left. Ma'am left. हाँ जी यो सेंटर प्लीज. मैम यो सेंटर. रोल है वैसे पीछे आओ. अरे मोबाइल ऊपर से हटाओ. ये लुक सेंटर मैम. Seeing the response, no, the media. Look center. I've just finished a media conference in Hyderabad, and yesterday I was in Bangalore. You will not believe. I mean, maybe they call it revenge tourism or whatever it is. The entire, I mean, one of the biggest media events in Hyderabad, and also yesterday in Bangalore. So I think we have. I'm sure. I think in other territories, other geographies, we are doing in 10 different places. Whether it is Delhi, Calcutta, Ahmedabad, Surat, Pune, Bombay, Hyderabad, Kerala, Chennai. So I think it is just a reflection of the sentiment that might happen across the country. It is, if you ask me, it will be the biggest private party in the country for all the families put together. Almost all my 5 lakh members across the country, you can expect them to be, most of them to be there. True, actually, people are, fed up of the बीमारी सुनते हुए. तो लॉकडाउन जब खुल ही चुका है, इट इज़ बेस्ट दैट पीपल कम एंड एन्जॉय द न्यू ईयर. और जिस तरीके से कंट्री क्लब में होता है, एक्चुअली इवेंट्स बहुत जगह पे होता है और हम लोग कंट्री क्लब में हम खुद एसोसिएट होना इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है. पूरी फैमिली रहती है, मतलब सिर्फ बैचलर्स आके पार्टी करते ऐसा नहीं है. वहाँ पे पूरी फैमिलीज बच्चे लेके आते हैं सब लोग पार्टी करने के लिए. और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज, सिक्योरिटी, फूड इतने अच्छे से होता है. सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं. तो हम भी एंजॉय करते हैं. सब लोग जब एंजॉय करते हैं तब हम भी एंजॉय करते हैं. तो इसीलिए हम लोगों ने खुद एक्चुअली सोचा कि हमें करना ही चाहिए इस साल. और इससे अच्छा हम लोग खुद अपने लिए न्यू ईयर को वेलकम नहीं कर सकते थे. फॉर एन आर्टिस्ट टू परफॉर्म वाइल एंटरिंग द न्यू ईयर इज़ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि आप अगले पूरे साल कुछ ना कुछ काम करते रहोगे और ऐसा मतलब ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते रहोगे. एंड फॉर द ऑडियंस ऑल्सो इट्स अ ह्यूज दिस थिंग दैट वी इंटरेक्ट विद देम एंड वी परफॉर्म फॉर देम. एंड इट्स लाइक इट्स अ वेरी गुड थिंग. और लोगों को मतलब न्यू ईयर पार्टी ढूंढने के लिए शहर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. इट्स राइट हियर इन कांदिवली. सो वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी. हमारे भी घर के बहुत नज़दीक है. साथ ही गुरमीत, हमने देखा अभी जो पहले के जो क्लिप्स दिखा रहे हैं आप दोनों बहुत ही अलग लग रहे थे और अब देखो तो बहुत अलग. क्या कुछ यादें आई हैं उस समय की और अब जब यहाँ से? वेल यार यादें तो काफ़ी है क्योंकि 31st मैं हमेशा ये मानता था कि एज एन एक्टर कि हम सभी 31st के लिए ढूंढते हैं पार्टी जाना. हम पैसा देते हैं, कहीं और जाते हैं. लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है ना 31st में खुद परफॉर्म करना ऑडियंस के सामने, वो अलग होता है. और जब मैं ये सारी क्लिप देख रहा था
तो यहाँ से कंट्री क्लब से ये शुरुआत हुई थी हम दोनों की यहाँ से परफॉर्म करने का। और मुझे लगता है हम सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं 31st को, क्योंकि स्टेज होता है, स्टेज के पीछे हमारे सारे दोस्त, हमारी सारी फैमिली आ जाती है, हम वहीं पे खाते हैं, मस्ती करते हैं, परफॉर्म करते हैं और सारी फैमिली साथ में देख रहे होते हैं और पूरी दुनिया देख रही होती है, लाइव जब होता है वो हर न्यूज़ चैनल में। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि 31st में आपको डांस करने को मिल रहा है आप अपने फैंस के सामने, और ये सारी फोटोज़ वीडियोज़ देख के तो ऐसा लग रहा था यार टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है। देवीना और भी कितना कुछ देखने मिलेगा ब्लॉग्स में, अभी तो प्रैक्टिस एंड ऑल सभी चीज़ें देखने मिलेंगी। क्या पता आप अपने आप को भी देख ले ब्लॉग में, आप सब दिखेंगे तो मेरे ब्लॉग देखते रहिए। आप में से कोई एक कैमरामैन है हमारा भी? हाँ, एक हमारा वो हमारा है, हमारे चैनल देवीना डिकोड्स का कैमरा भी चल रहा है, तो आप लोग अपने आप को भी देखेंगे। तो आई थिंक या वी आर शोइंग आवर जर्नी और एंजॉय कर रहे होंगे आप मेरा ब्लॉग देखना। तो आज का दिन भी मैंने रिकॉर्ड किया है, होपफुली आई विल बी एबल टू शो माई साइड ऑफ द स्टोरी। जो ग्लैमर, जो ग्लिटर दिखता है, उसके पीछे का हमारा जो मेहनत होता है, दुविधा, कश्मकश, सब कुछ दिखता है, एंड दैट इज हाउ आई थिंक इट्स वेरी फुलफिलिंग। क्या हम आप दोनों को भी आने वाले दिनों में कोई प्रोजेक्ट्स में देख सकते हैं साथ में? साथ में का तो राइट ना पता नहीं। हाँ, मतलब अगर ऑफर हुआ तो वाई नॉट। साथ में का तो पता नहीं, पर गुरमीत तो दिख ही रहे हैं। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हम दोनों कितने अलग दिख रहे थे, मुझे लग रहा है गुरमीत तो ज़्यादा अलग नहीं दिख रहे, हेयर स्टाइल बदला है, मैं अलग दिख रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी पतली थी एंड आई हैव रीजंस टू पुट ऑन अ लिटिल वेट, फिर भी उस हिसाब से नहीं है। बट बाय द टाइम 31st को आप लोग देखेंगे, क्या पता कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाए और वो भी काफ़ी मोटिवेशनल हो। Ticket prices and expecting crowd. Expected crowd, I think about 5,000 people in Kandivali, another 5,000 people in Andheri. So I'm sure, I think there's going to be a big crowd and already, because ours is the only club, like I was telling you, is going to be a family affair. So as usual, I think all roads will lead to the country club, whichever city it's there. So The crowd is I think history is going to repeat itself. Crowd is every time it is very huge, but very organized. That's what we love. In country club, the audience also has like stars. They dance along with the stars. Yeah, that's true. So that is very important, because that's where actually the entire enthusiasm comes from. Everybody is looking for coming here in a huge manner. So I'm sure, I think they will break all barriers to be there with us on that day, whichever city. साथ ही देवीना एंड गुरमीत, आप लोग बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो दिस ईयर, बिकॉज दी फैंस आर दिस ईयर लाइक वेरी क्रेजी, सो एनी ऑफ द कंटेस्टेंट्स इफ यू नो? ये सुबह शाम मुझे लगता है बिग बॉस ही देखती है, और सुबह नहीं देखती हूँ, बस अच्छा, शाम को देखती हूँ। हाँ, और एक्चुअली व्हेन यू आर एट होम, और जो लोग घर पे बैठे रहते हैं विथ सो मेनी घर का काम, जहाँ पे आपको बहुत देर तक एक जगह बैठे रहना पड़ता है, तो आप बिग बॉस देखते हो। तो मैं देख रही हूँ गुरमीत की। अच्छा, प्रोजेक्टर में लगा कि हमारे घर में बड़ा प्रोजेक्टर है, तो आप सोचिए बिग बॉस बड़े से हॉल में प्रोजेक्टर में चल रहा होता है, तो ये आपको जबरदस्ती देखना भी पड़ता है। गुरमीत तो देखते हैं, और नहीं मैं तो डेफिनेटली एंजॉय करती हूँ, और लोग जितना लड़ाई करते हैं उतना अच्छा लगता है। और गुरमीत का दोस्त भी है शालीन, और हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छा खेले और काफ़ी अच्छा करे। सब लोग अच्छा कर रहे हैं, मतलब इस बार ऐसे कोई स्टैंड आउट नहीं हुआ है, बट तो इसीलिए उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो पकने दे रहे हैं, थोड़ा सा और कुक हो तो समझ में आएगा। शालीन और टीना की जोड़ी कैसे लगती है? पर मैंने सुना टीना एलिमिनेट हो गई, तो फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी क्या होगा आगे। नहीं हुई? अरे वाह, साथ ही कुछ शालीन के बारे में आपने कुछ सुना होगा, वो हमेशा चिकन की डिमांड करते ही हर किसी से लड़ते हैं। ये मुझे वो आगे पूछना है उससे, शालीन से, भाई इतना चिकन क्यों खा रहा है तुम? बट नहीं, इज़ अ वेरी स्वीट बॉय यार, मतलब वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है वो। मैं और शालीन बचपन के दोस्त हैं। वो जबलपुर से आया था, मैं डैड की पोस्टिंग जबलपुर थी, तो मैं भी वहाँ से जबलपुर से ही बॉम्बे आया था एक्टर बनने, तब से मैं उसको जानता हूँ। बहुत मेहनती लड़का है, और मुझे लगता है उसको देख के खुशी होती है, अच्छा लग रहा है। तो मैं बिग बॉस देखती हूँ ऑडियंस जैसे, मेरे लिए पहले का दोस्त वोस्त कोई नहीं होता है। शो में जो अच्छा कर रहे हैं मैं उनके फैन हो जाती हूँ। आप भी किसकी फैन हो?
बोला ना अभी तक कुछ ठीक से कोई उठ के आए नहीं, अभी स्टिल कुकिंग। तो जब थोड़ा कुक हो जाएगा ना तो पता चलेगा असली चिकन और बिरयानी अलग होता है। गुरमीत, आपको अगर शालीन एज ए शालीन के फ्रेंड अगर घर में जाने का मौका मिलेगा तो एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे शालीन को? चिकन नहीं यार, शालीन अच्छा, मुझे लगता है कि शालीन अच्छा खेल रहा है। एक्चुअली सबसे अच्छी बात है शालीन की, मुझे ये लगती है कि वो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमेशा दिखेगा आपको। सबसे ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस मतलब जो है उसका प्रेजेंट जो है वो उसका है शालीन का, वो हमेशा हर एपिसोड में उसका कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो विच इज़ गुड यार। बिग बॉस इज़ ऑल अबाउट, आप कभी गंदे दिखते हो कभी अच्छे दिखते हो, यू नेवर नो कि एंड तक शालीन किस तरीके से गेम खेल रहा हो और बहुत अच्छा कर पाए। वो इनफैक्ट अच्छा कर रहा है। But lastly, a message to all the viewers who are very excited for the जो बाहर है वो लोग का पता नहीं, बॉम्बे के जो लोग मुंबई में हैं वो लोग सब आ जाइए कांदिवली में, अंधेरी में बाकी लोग आ सकते हैं, अगर आप दूर नहीं आ सकते आपके लिए तो। ये बाहर वालों के लिए मैं लाइव रखूंगा, इनफैक्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हर जगह पे हम लोग लाइव रखेंगे, सो दैट आप हमें जो दूर के जितने भी फैंस हैं वो भी हमें देख सकते हैं। Thank you so much. Nice.